Hello everyone, welcome to you my Akil Sir's classes. I'm Akil Ahmed, your accounts and commerce teacher. I'm now going to discuss you about cash book. Today my topic is cash book. But before discussion, I want to request you to subscribe, like and share my channel so that I can upload my latest video with you. And also I'm going to tell you regarding my coaching center, which is in the name of Akil's Coaching Center. And I have been in teaching profession for more than 15 years in this field. So basically I am an accounts and commerce teacher, but I am teaching also maths and other subjects also. Maths from 5 to 10, and it includes all the boards, West Bengal, ISC, CBSE and also NIS, IGNOU, all the boards. And for ICSE stream, those who have to optate commerce stream, I am teaching also maths, commerce and economics. They have commercial studies and commercial application in class 9 and 10. Also I am teaching maths and other subjects from 5 to 10, and basically for Delhi board I am teaching maths and commerce also. Also I am teaching HS, West Bengal, ISC, CBSE, NIS, IGNOU, and also BCom students from honors and pass both, BBA also, and CA, CS and ICWA foundation and intermediate level. So those who are willing to take tuitions from me, they can join me. I am giving individual attention to all the students, and they are securing 90% in the final exam. So my address is Akil's Coaching Center at 3/8/1 Chautala Lane, Kolkata 17. It is near RC Motor Training School and 65 Ward Corporation Office. My coaching center is in the ground floor, and my residence in same building, second and third floor. So my number is 6290734670. I am repeating again. If you are watching my video, take a pen and note down it. My number is 6290734670, and also I have another number which is 9007554491. So those who are willing to, I am telling you again, my address is Akil's Coaching Center at 3/8/1 Chautala Lane, Kolkata 17. Building name is Ashiana Building. It is in the ground floor, and I am residing in second and third floor. Okay. Those who are willing to take tuition, they can join me. My number, I am repeating again, 6290734670. Those who are watching my video, they can take a pen and note down my number, 6290734670, and another number is 90075554491. Okay. Now I am going to start my session today. My topic is now cash book. Cash book means the book in which we are recording only cash transactions. Cash transaction means all receipt and payment in cash and check both. Whatever received in cash and check immediately, जो हम लोग को immediate payment मिल जाता है, ये हम लोग immediate payment करते हैं. Like purchase goods for cash, sold goods for cash, purchase goods by check, sold goods by check. Okay. So cash book is a book where all cash transactions are recorded, and where cash book is kept, there is no means of cash account and bank account to be opened separately. जहाँ पे कैश बुक मेंटेन होता है, वहाँ पे हम लोग को कैश और बैंक अकाउंट मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है. बिकॉज कैश बुक से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, अगर डबल कॉलम मेंटेन करेंगे तो हम लोग को कैश और बैंक दोनों मिल जाएगा, और अगर सिंगल कॉलम मेंटेन करेंगे तो हम लोग को वहाँ से सिर्फ कैश बैलेंस मिलेगा. बैंक अकाउंट के लिए अलग से बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है. सो देयर आर 3 types of cash book are there. One is single column cash book, double column cash book and triple column cash book. Another type of cash book is there which is known as petty cash book. So we came to know there are 4 types of cash book is there. One is cash book, a single column cash book. Another is double column cash book. Third one is triple column cash book, and the fourth type of cash book is petty cash book. तो कैश बुक को क्या बोला जाता है? अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस कैश बुक का जर्नल और अ लेजर, व्हाट इज योर आंसर? क्या आंसर होगा तुम लोगों का?
कैश बुक क्या है, जर्नल या लेजर है? द आंसर इज कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। कैश बुक क्या बोला जाता है? कैश बुक को बोला जाता है जर्नलाइज्ड लेजर। वाई कैश बुक इज कॉल्ड अ जर्नलाइज्ड लेजर? बिकॉज कैश बुक कंटेन्स बोथ द फीचर्स ऑफ जर्नल एंड लेजर। लाइक जर्नल, क्या फीचर है इसका? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली एज पर डेट। जैसा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, देन 2 अप्रैल, देन 3rd। अब 3rd के बाद तो 2nd का एंट्री नहीं होगा। सो कैश बुक इज अ जनरलाइज्ड लेजर बिकॉज इट कंटेन्स both the features of journal and ledger. Like journal, transactions are recorded chronologically, and like journal, narrations are given for every transaction. यहाँ पे narration दिया जाता है। जर्नल की तरह ट्रांजेक्शन को हम लोग डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल की तरह इसका नरेशन दिया जाता है। लेजर का क्या फीचर है कैश बुक में? लाइक लेजर इट हैज़ 2 sides, डेबिट एंड क्रेडिट। लेजर की तरह इसका डेबिट और क्रेडिट साइड है। एंड लाइक लेजर, कैश बुक इज बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। लेजर की तरह कैश बुक बैलेंस्ड होता है एवरी मंथ में बाय बैलेंस सीडी। जिस तरफ टोटल ज़्यादा होगा उसका ऑपोजिट में निकलेगा बाय बैलेंस सीडी, और जिस तरफ सीडी होगा उसका ऑपोजिट में होगा बीडी। सीडी मीन्स कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस जो होता है विच इज़ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे में बनता है। जैसे अगर जैन का बना रहे हैं तो जैन 31 में सीडी होगा और बीडी होगा 1 फरवरी में। और अगर मार्च का बना रहे हैं तो मार्च 31 में होगा सीडी, अप्रैल में होगा बीडी, अप्रैल 1 में। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, जैसे हम लोग को मालूम है कैश अकाउंट डेबिट कब होता है, जहाँ पे कैश आता है। तो कैश बुक का डेबिट साइड में क्या आता है, जितना मेरे पास कैश आ रहा है। लाइक सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो जैसा लेजर पोस्टिंग करते हैं वैसे यहाँ पे जहाँ पे कैश डेबिट होगा पोस्टिंग डेबिट में होगा, जहाँ पे कैश क्रेडिट होगा पोस्टिंग क्रेडिट में होगा। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में देयर इज़ ओनली 1 कॉलम कैश इज़ देयर। तो वहाँ पे कैश का बैलेंस हमेशा क्या होता है, अगर दिया हो रहा है कैश इन हैंड तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। और अगर बोलते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो एंट्री क्या करें कैश बुक में? टू कैपिटल, क्योंकि ये कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट है तो पोस्टिंग भी डेबिट में होगा। ओके, एंड जितना कैश आएगा वो डेबिट में आएगा और जितना कैश जाएगा वो क्रेडिट में जाएगा। तो हम लोग फॉर्मेट कैसे लिखेंगे? राइट डाउन द फॉर्मेट इफ यू हैव एनी डाउट्स। लाइक इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, ठीक है। ये है मेरा सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ, सपोज हम लोग बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, अप्रैल 22 सॉरी। ओके, तो यहाँ कॉलम बनाएंगे डेट। सिंगल कॉलम कैश बुक है तो यहाँ पे अमाउंट का एक ही कॉलम होगा। सिंगल कॉलम कैश बुक है इसलिए अमाउंट का एक कॉलम होगा। ओके, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF and only 1 amount column because we have only 1 कैश कॉलम इज देयर। डबल कॉलम में 2 कॉलम होगा, कैश, बैंक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? कैश, बैंक और डिस्काउंट। ओके, नाउ तो ये स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग? सपोज अप्रैल 1 में दे दिया है, सम से तुमको दिया हो रहा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है अप्रैल 1 में कि मार्च का ये क्लोजिंग बैलेंस है। मार्च 31 में क्या था? बाय बैलेंस सीडी था। अप्रैल में क्या होगा? बीडी। अब अप्रैल का सीडी क्या होगा? मई में बीडी। मई का सीडी क्या होगा? जून में बीडी। इस तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो अगर समझ जाएगा कैश इन हैंड, एंट्री क्या करेंगे हम लोग? टू बैलेंस बीडी। ओके, और अगर समय बोलता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो एंट्री क्या करेंगे? टू कैपिटल। ओके, नाउ होप यू अंडरस्टैंड। नाउ होप यू क्लियर। नेक्स्ट एंट्री होगा जहाँ इस साइड क्या है मेरा? कैश बुक, मतलब कैश बुक क्या है मेरा? सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है? ये कैश अकाउंट है। और अगर डबल कॉलम रहेगा मतलब हम लोग कैश और बैंक एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम क्या बोला था, जहाँ पे कैश बुक मेंटेन करेंगे वहाँ पे अलग से हम लोगों को कैश अकाउंट सेपरेटली बनाना नहीं पड़ेगा।
कैश बुक से हम लोग को कैश का बैलेंस मिल जाएगा फ्रॉम सिंगल कॉलम। और अगर डबल कॉलम बना रहे हैं तो हम लोग को बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों का बैलेंस कैश बुक से मिल जाएगा। इसलिए कैश बुक को बोला जाता है जर्नलाइज लेजर, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द फीचर्स ऑफ जर्नल एंड लेजर टुगेदर। ये क्या साइड है मेरा, कैश आ रहा है मेरे पास, और ये क्या साइड मेरा, कैश जा रहा है। तो जितना कैश जहाँ पे डेबिट होगा पोस्टिंग कहाँ कैश बुक में डेबिट में होगा, और जहाँ पे कैश क्रेडिट होगा पोस्टिंग कहाँ क्रेडिट में होगा। कैश डेबिट कहाँ पे होता है, जब मेरे पास कैश आता है। कैश कब आता है, जब इनकम होता है। कैश क्रेडिट कब होता है, जब मेरा एक्सपेंस होता है। ओके, तो एंट्री क्या लिखेंगे, टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ओके, अगर मान लो डेटा से कलेक्शन बोला रिसीव्ड कैश फ्रॉम रॉय, तो क्या लिखेंगे, टू रॉय। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कस्टमर। being cash received from customer। ओके, तो जितना कैश आएगा डेबिट में आएगा, जितना कैश जाएगा एक्सपेंस होगा वो क्रेडिट में आएगा। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में मेरे पास ओनली कैश कॉलम है, सिर्फ कैश का इफेक्ट दिखाएंगे। जब डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे वहाँ पे मेरा कैश और बैंक दोनों अकाउंट मेंटेन करेंगे, वहाँ पे कैश और बैंक दोनों में इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। तो विथड्रू में कैश अकाउंट डेबिट है इसलिए कैश का डेबिट में आएगा, और बैंक क्रेडिट है तो डबल कॉलम में क्या होगा, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। Whenever there is any transactions between cash and bank takes place, an entry is passed on both sides of the cash book, which is known as contra entry. It is denoted by C in the ledger folio of the cash book. Contra entry कैसे डिनोट होता है, C से, और वो कब होता है, जहाँ पे कैश और बैंक दोनों एक साथ रहेगा। Like withdrew cash from bank for office use, deposited cash into bank, और opened a bank account। opened a bank account और deposited दोनों का मीनिंग एक ही है। बैंक अकाउंट ओपन कैसे होता है, by depositing cash into bank। so deposited cash into bank or opened a bank account, both meanings are same। in both the cases contra entry will be passed on both side of the cash book। तो विथड्रू में कैश बढ़ता है इसलिए कैश का डेबिट में आएगा और बैंक का क्रेडिट। जब हम लोग डबल कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल कॉलम है तो सिर्फ कैश का इफेक्ट दिखाएगा। व्हेन वी आर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, आवर बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक का डेबिट में आएगा और कैश का क्रेडिट। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में देयर इज नो बैंक कॉलम, तो सिर्फ विथड्रू में कैश का डेबिट में आएगा और डिपॉजिट में कैश का क्रेडिट में आएगा। तो क्या लिखेंगे, विथड्रू में टू बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री और एक चीज़ में पास होता है जहाँ पे वी हैव मोर देन वन बैंक अकाउंट, जैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक। बिजनेसमैन का दो बैंक अकाउंट क्या है, 3-4 भी रहता है। वेन एवर देर इज एनी ट्रांसफर बिटवीन वन बैंक टू अनदर बैंक, मान लो अगर एसबीआई से जा रहा है आईसीआईसीआई में, जब डबल कॉलम बनाएंगे तो हम लोग कैश और बैंक का दो कॉलम बनेंगे, एसबीआई आईसीआईसीआई। तो एसबीआई से अगर आईसीआईसीआई में जा रहा है तो आईसीआईसीआई का डेबिट में आएगा। एंट्री क्या होगा, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई। तो आईसीआईसीआई बैंक में डेबिट में आएगा टू एसबीआई बोलकर, और एसबीआई में क्या आएगा, बाय आईसीआईसीआई। तो जो बैंक रिसीव करेगा उसका डेबिट में आएगा, जो बैंक ट्रांसफ़र करेगा उसका क्रेडिट में आएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। तो वेन एवर there is any transfer between one bank to another bank, in that cases also contra entry will be passed। okay, तो टू बैंक क्या लिखेंगे, being cash withdrawn for office use, being cash withdrawn for office use। okay, हम आगे बोला था अगर बोलते हैं विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो एंट्री क्या होगा उस वक्त, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो उस वक्त कैश का डेबिट में नहीं आएगा, बिकॉज कैश वॉज विथड्रॉन नॉट फॉर ऑफिशियल पर्पज बट फॉर पर्सनल पर्पज। तो
तो जब डबल कॉलम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर बोलता है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस कैश फॉर पर्सनल, तब लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश में कहाँ है बाय ड्राइंग्स। लेकिन अगर बोलते हैं विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, तब वो डबल कॉलम में जाएगा, बाय ड्राइंग्स बैंक अकाउंट का क्रेडिट में आएगा। तो कैश और बैंक दोनों का रूल्स एक ही है, जहाँ पे कैश डेबिट होगा पोस्टिंग डेबिट में आएगा, जहाँ पे कैश क्रेडिट होगा पोस्टिंग क्रेडिट में आएगा। सिमिलरली जब डबल कॉलम बनाएंगे, बैंक जहाँ डेबिट होगा पोस्टिंग डेबिट में आएगा बैंक का, बैंक जहाँ क्रेडिट होगा पोस्टिंग बैंक का क्रेडिट में आएगा। ओके, गॉट माई पॉइंट। नाउ जहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, इसलिए कैश बुक कहाँ आएगा बाय परचेज। ओके, तो जहां पे कैश क्रेडिट होगा पोस्टिंग क्रेडिट में आएगा, बाय परचेज, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अगर मान लो बोलते हैं सैलरीज पेड टू ऑफिस स्टाफ, तो क्या होगा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या एंट्री होगा बाय सैलरीज। इसी तरीके से अगर बोलते हैं रेंट पेड, क्या होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट है तो क्या लिखेंगे कैश में बाय रेंट नरेशन के साथ। ओके, कैरेज पेड बाय कैरेज, इस तरीके से बनेगा। ओके, बाय एडवर्टीजमेंट, बाय स्टेशनरी, अगर बोलते हैं विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर पर्सनल यूज, बाय ड्राइंग्स। और अगर बोलते हैं मशीनरी परचेज, क्या होगा बाय मशीनरी, उस वक्त बाय परचेज नहीं होगा। तो मशीनरी क्या है मेरा एसेट्स है, एसेट्स में परचेज डेबिट नहीं होता है। जहाँ पे गुड्स परचेज करेंगे वहाँ पे परचेज डेबिट होगा, जहाँ पे एसेट परचेज करेंगे इंस्टीड ऑफ परचेज वी हैव टू डेबिट दैट एसेट अकाउंट। और एक चीज़ है, अगर मान लो बोलते हैं स्टेशनरी परचेज, क्या लिखा हम लोग बाय स्टेशनरी, तो जहाँ पे गुड्स रहेगा वहाँ पे परचेज डेबिट होगा, जहाँ पे गुड्स नहीं रहेगा वहाँ पे जो चीज़ खरीदेंगे वो डेबिट होगा। ओके, नाउ आफ्टर पोस्टिंग हम लोग को मालूम है कि कैश बुक क्या मेरा कैश अकाउंट है, तो कैश बुक का बैलेंस कहाँ निकलता है, हमेशा डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है। ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे दैट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है और बैलेंस कहाँ निकलता है मेरा क्रेडिट साइड में, बिकॉज कैश अकाउंट हैज़ ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस, कैश कैनॉट बी अ नेगेटिव बैलेंस। कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है या नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है। कैश हमेशा क्या होता है डेबिट ज़्यादा होता है, बैलेंस शीट निकलता है क्रेडिट में और बीडी कहाँ होता है डेबिट में। पहले ही बोला है जिस तरफ बीडी होगा उस अकाउंट को वही बैलेंस माना जाएगा। तो कैश बुक का मतलब ये कैश अकाउंट है, हमेशा डेबिट ज़्यादा होगा, सीडी निकलेगा क्रेडिट में, बीडी होगा डेबिट में। तो कैश अकाउंट हैज़ ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस, कैश कैनॉट बी अ नेगेटिव और अ क्रेडिट बैलेंस। ओके, बट बैंक अकाउंट क्या हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। बैंक अगर मान लो अगर डबल कॉलम रहता है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक का दिया हुआ रहेगा, इन डबल कॉलम हम लोग क्या लिखेंगे कैश अकाउंट का कैश और बैंक दोनों अमाउंट बनाएंगे, टू बैलेंस बीडी लिखकर कैश का बैलेंस कैश में लिखेंगे, बैंक का बैलेंस बैंक में लिखेंगे। लेकिन अगर बोलता है बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग में बोल दिया है तो वह नेगेटिव बैलेंस वो कहाँ चले जाएगा बाय बैलेंस बीडी। सिमिलरली जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस ड्रॉ करेंगे, कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा निकलता है सीडी, लेकिन बैंक का बैलेंस दोनों तरफ निकल सकता है। बैंक का टोटल अगर डेबिट ज़्यादा होगा तो सीडी निकलेगा क्रेडिट में, बीडी होगा डेबिट में। लेकिन अगर बैंक का टोटल क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो सीडी कहाँ निकलेगा डेबिट में, बीडी होगा क्रेडिट में। तो बैंक का बैलेंस हमेशा क्या हो सकता है डेबिट और क्रेडिट दोनों निकल सकता है। बैंक का बैलेंस अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा हुआ तो सीडी निकलेगा क्रेडिट में, बैंक का क्रेडिट ज़्यादा हुआ तो सीडी निकलेगा डेबिट में। इस तरीके से हम लोग को बैलेंस ड्रॉ करना होगा। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक क्या बोला हम, वी हैव टू कॉलम्स देयर, वन इज कैश कॉलम, अनदर इज बैंक कॉलम। वी हैव टू कॉलम्स कैश एंड बैंक। In triple column we have three columns there, cash, bank and discount. Okay,
लाइक डिस्काउंट अलाउड मेरा डेबिट में आएगा। जब कस्टमर से हम लोग को कैश मिलेगा या चेक मिलेगा तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट। मान लो अगर बोलते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम रहीम एंड डिस्काउंट अलाउड, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रहीम, तो क्या लिखेंगे, कैश का अमाउंट कैश में लिखेंगे, डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट में लिखेंगे टू रहीम। और अगर मान लो पेड टू श्याम बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव, तो एंट्री क्या होता है, श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। तो एंट्री कहाँ चला जाएगा, बाय श्याम लिखेंगे, बैंक का क्रेडिट में लिखेंगे और डिस्काउंट भी क्रेडिट में लिखेंगे। तो डेबिट में क्या आता है, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट में क्या आता है, डिस्काउंट रिसीव। ओके, अनदर टाइप ऑफ कैश बुक जो पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब होता है, पेटी मीन्स स्मॉल एक्सपेंसेस। फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल एक्सपेंसेस कंपनी का एक सीनियर अकाउंटेंट रहता है, एक जूनियर अकाउंटेंट रहता है। सो पेटी कैश बुक इज मेंटेन बाय द कैशियर ऑफ दैट कंपनी, जूनियर अकाउंटेंट वो मेंटेन करता है फॉर मीटिंग स्मॉल एक्सपेंसेस, उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। पेटी कैशियर क्या करता है, उसको कुछ अमाउंट दिया जाता है वीकली और मंथली फॉर मीटिंग दो स्मॉल एक्सपेंसेस। पेटी कैशियर को क्या करना पड़ता है, ऑर्डिनरी सिस्टम, दो मेथड में मेंटेन होता है पेटी कैश बुक, एक है ऑर्डिनरी सिस्टम और एक होता है इम्प्रेस सिस्टम। ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या है, पेटी कैशियर को हर मंथ अलग अलग अमाउंट मिलता है। मान लो अगर अप्रैल में, मार्च में मिला है, अप्रैल में मिला है मान लो 500 रुपीज़, मई में मिलेगा 1000 रुपीज़, इस तरीके से अमाउंट अलग अलग होता है ऑर्डिनरी सिस्टम में। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि वो इम्प्रेस्ड फंड एवरी मंथ इक्वल रहता है। तो ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या होता है, पेटी कैशियर को हमेशा हर मंथ जो बैलेंस बचता है उसको रिटर्न करना पड़ता है। द बैलेंस इज टू बी रीइंबर्स्ड बाय द पेटी कैशियर टू द हेड कैशियर। लेकिन इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, पेटी कैशियर को अमाउंट रिटर्न नहीं करना पड़ता है, बल्कि जो इक्वल फंड वो बराबर करने के लिए पेटी कैशियर को जितना एक्सपेंस हुआ है वो उसको रिटर्न मिल जाता है फ्रॉम द हेड कैशियर। तो इम्प्रेस सिस्टम में पेटी कैशियर को रिटर्न नहीं करना पड़ता है, बल्कि पेटी कैशियर को अमाउंट रिटर्न मिलता है जितना खर्च हुआ है। सपोज अगर पेटी इम्प्रेस फंड है 1000 रुपीज़ और अगर एक्सपेंस हुआ 800, बैलेंस कितना बचा, बैलेंस इन हैंड इज 200 बैलेंस बीडी। तो 1000 को मीटअप करने के लिए 800 रुपीज़ पेटी कैशियर को रिटर्न मिल जाएगा हेड कैशियर से टू इक्वल टू द इम्प्रेस फंड। बट अंडर ऑर्डिनरी सिस्टम वो 200 जो बचा, 200 जो बैलेंस बचा है वो पेटी कैशियर को वापस कर देना पड़ेगा हेड कैशियर को, दोबारा फ्रेश फंड मिलेगा पेटी कैशियर को। So these are the differences between ordinary system and impress system under petty cash book. Okay? Now I am giving you format of double column cash book. We have two columns here. One is cash column, another is bank column. Okay? Cash and bank. Date particulars, cash. I am not writing bank voucher number later for you. You have to write in your exam. I am just giving you the format. So write down date particulars cash bank. Again date particulars cash bank. Starting from, we know that cash का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट में होता है। So अगर सम्स में दिया रहेगा टू बैलेंस BD, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्या लिखें, कैश का अमाउंट कैश में, बैंक अमाउंट बैंक में। लेकिन अगर सम में बोलते हैं, ओपनिंग में बोलता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। तो बैंक का बैलेंस डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में हो सकता है। सिमिलरली जब हम लोग बैलेंस को क्लोज करेंगे वहाँ पे भी बैंक का बैलेंस दोनों तरफ निकल सकता है। अगर डेबिट में ज़्यादा हुआ टोटल तो यहाँ निकलेगा CD, तो BD होगा डेबिट में, और अगर क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो CD निकलेगा डेबिट में, BD होगा क्रेडिट में। जस्ट लाइक द ओपनिंग बैलेंस, मतलब लास्ट मंथ क्या हो गया था, मार्च में CD ज़्यादा हो गया था, मतलब क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो गया, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो गया था, तो CD कहाँ निकला था, मार्च में डेबिट में, टू बैलेंस CD निकला था, इसलिए अप्रैल में क्या हो गया, बाय बैलेंस BD, ओवरड्राफ्ट। तो इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस इट विल बी बाय बैलेंस BD। सो बैंक का बैलेंस दोनों तरफ निकल सकता है। ओके, तो हम लोग को मालूम है कि कैश बुक का डेबिट साइड में क्या आता है, जितना कैश आ रहा है, और क्रेडिट में क्या है, जितना कैश जा रहा है। तो कैश और बैंक दोनों का रूल्स एक ही है
कैश जब भी आता है डेबिट होता है, चेक्स जब भी मिलता है बैंक में डेबिट होता है। सिमिलरली जितना हम लोग पेमेंट करेंगे कैश से वो कैश का क्रेडिट में आएगा, जितना चेक से पेड करेंगे वो बैंक का क्रेडिट में आएगा। सिमिलरली अगर बोलते हैं हम लोग कि गुड्स सोल्ड कैश एंड चेक बोथ रिसीव, तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स कैश का अमाउंट कैश में, चेक्स का अमाउंट बैंक में। बीइंग कैश एंड चेक रिसीव, बीइंग कैश एंड चेक रिसीव। ओके। सिमिलरली कस्टमर से अगर आपको पैसा मिला, टू कस्टमर कैश एंड चेक दोनों मिल रहा है। टू कस्टमर कैश का अमाउंट कैश में, चेक्स का अमाउंट बैंक में। और एक चीज़ है यहाँ पे, कस्टमर का चेक अगर मान लो सेम डे अगर डिपॉजिट, अप्रैल 15 को चेक मिला और अगर सेम डे डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक में लिख देंगे। लेकिन अगर मान लो 15 को चेक मिला लेकिन बैंक में डिपॉजिट हो रहा है 17 को, तो क्या करना होगा? उसको कैश में डेबिट करना होगा, कैश में रखना होगा, क्योंकि वो बैंक में गया नहीं है। तो जब हम लोग कस्टमर से चेक मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? अगर सेम डे डिपॉजिट होता है तो डायरेक्टली बैंक में डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं होता है, इफ़ इट इज़ डिपॉजिटेड ऑन अ सब्सिक्वेंट डे और ऑन द फॉलोइंग डे और ऑन द नेक्स्ट डे, बाद वाला दिन डिपॉजिट हो रहा है, 15 के बाद अगर डिपॉजिट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? जिस दिन हम लोग को चेक मिलेगा उस दिन हम लोग क्या करेंगे? कैश में डेबिट करेंगे, कैश और चेक दोनों को। अब जिस दिन डिपॉजिट करेंगे उस दिन क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा, टू कैश बाय बैंक। मतलब एक बार कैश में डेबिट होगा, एक बार कैश से क्रेडिट होगा। ओके। नाउ बीइंग कैश एंड चेक रिसीव, नाउ क्रेडिट में क्या आता है मेरा? और एक चीज है, जब विड्रू कर रहे हैं कैश बैंक से तो कैश मेरा आ रहा है। अब क्या बोला था? सिंगल कॉलम में क्या बोला था? सिर्फ मेरा कैश कॉलम था, इसलिए कैश में इफेक्ट दिखाया था। डबल कॉलम में क्या है मेरा? दोनों तरफ पोस्टिंग दिखाना होगा, जैसा लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर में क्या करते हैं हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश में क्या पोस्टिंग करते हैं? टू बैंक। बैंक में क्या करते हैं? बाय कैश। सिमिलर एंट्री यहाँ भी करना होगा। ये मेरा कैश अकाउंट है, ये मेरा बैंक अकाउंट है। तो जहाँ पे कैश डेबिट होगा कैश का डेबिट में आएगा, जहाँ पे बैंक डेबिट होगा बैंक का डेबिट में आएगा, जहाँ पे कैश क्रेडिट होगा कैश का क्रेडिट में आएगा, जहाँ पे बैंक क्रेडिट होगा बैंक का क्रेडिट में जाएगा। तो विड्रू में क्या हो रहा है? कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो पोस्टिंग कहाँ होगा? कैश डेबिट है इसलिए कैश का डेबिट में आएगा, बैंक क्रेडिट है इसलिए बैंक का क्रेडिट में जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ट्रा टू बैंक, कैश का डेबिट। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय कैश बैंक से क्रेडिट। ओके। सिमिलरली अगर डिपॉजिट करेंगे तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, क्या बोला? जहाँ पे कैश डेबिट होगा कैश का डेबिट, जहाँ पे बैंक डेबिट होगा बैंक का डेबिट। तो यहाँ पे डिपॉजिट में क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए बैंक का डेबिट, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक कैश से क्रेडिट। ओके। और मेरे पास अगर दो बैंक रहता है तो जिस बैंक में ट्रांसफर करेंगे, जो बैंक रिसीव करेगा ट्रांसफर उसका डेबिट में आएगा, और जो बैंक ट्रांसफर देगा उसका क्रेडिट में आएगा। ओके। ना अगर मान लो यहाँ देता है कि बीइंग सैलरीज पेड बाय चेक, तो क्या लिखेंगे? बाय सैलरीज बैंक का क्रेडिट। अगर बोलते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश तो क्या लिखेंगे? बाय परचेजेज कैश का क्रेडिट। सिमिलरली अगर बोलते हैं रेंट पेड बाय कैश, बाय रेंट। अगर बोलते हैं पेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक, बाय क्रेडिटर्स बैंक का क्रेडिट। तो क्या समझ में आया कि कैश बुक में जब भी कैश आएगा डेबिट में आएगा, जब भी चेक्स मिलेगा बैंक का डेबिट में आएगा, जब भी कैश से पेड होगा कैश के क्रेडिट में आएगा, जब भी चेक से पेड होगा बैंक के क्रेडिट में आएगा। होप यू क्लियर माय पॉइंट। नाउ मूविंग टू द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? हम लोग को मालूम है, कैश का तो मालूम हम लोग को पहले भी डिस्कस हो चुका है कि कैश का हमेशा डेबिट ज़्यादा होता है और सीडी कहाँ निकलता है? क्रेडिट में। हम लोग को मालूम है कैश हैज़ ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस। कैश कैन नॉट बी अ नेगेटिव और क्रेडिट बैलेंस। कैश कभी भी क्रेडिट ज़्यादा नहीं होगा और सीडी कभी भी डेबिट में नहीं निकलेगा। जब सीडी डेबिट में नहीं निकलेगा तो बीडी भी क्रेडिट में नहीं होगा। ओके। बट बैंक क्या है? जस्ट लाइक द ओपनिंग बैलेंस, अगर बैंक का डेबिट ज़्यादा हुआ तो सीडी निकलेगा क्रेडिट में, और अगर बैंक का मान लो क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो सीडी कहाँ निकलेगा? मेरा डेबिट में। ओके। इफ डेबिट साइड इज मोर
balance CD will be on the credit side in bank account. If credit side total is more in bank account, balance CD will be on the debit side in bank column. Okay, I am giving you star because it could appear in both sides, either of the both sides, either credit side or on the debit side. If debit side total is more, बैंक का debit total ज़्यादा होता है तो balance CD निकलेगा credit में. If debit side total is more, balance CD will be on the credit side. If CD on the credit side, balance BD will be on the debit side. अगर CD निकलता है credit में तो BD कहाँ होगा? Debit में. मतलब वो क्या माना जाएगा? Bank has a debit balance, just like the opening balance BD. But if credit side total is more, balance CD will be on the debit side. And if balance CD on the debit side, अगर balance CD debit में आ रहा है तो BD कहाँ होगा? Credit में. Okay? So बैंक का balance दोनों तरफ निकल सकता है. Either on the debit side balance BD or on the credit side as by balance BD. Okay? Hope you understand my point. Now, moving to the discount allowed part, which I would discuss in my next session. Okay? Today I am going to close my lecture. I am again requesting you to please share, subscribe and like my video so that I could make all the videos in future regarding our. Now I am going to discuss about cash book. Next I am giving you detailed discussion about the triple column cash book in my next lecture. Also BRS, all the topics in class 11, also in 12 and also BCom, CA, CS, ICW, all the topics I'm going to discuss regarding costing, taxation. I'm also going to discuss in my relevant discussion next session of my classes. Hope you enjoy my session with me. Now I'm going to close my session and saying a goodbye. Okay, thank you a lot and share my video again. Thank you. Bye.